Assalamu alaikum students. So I hope you all are fine. So in this video we are going to solve exercise 1B question number 2 from Think New Syllabus Mathematics book 2. So if you have not watched the video for exercise 1B question number 1, please click on I button above this video and watch that video. So वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर सारे स्टेप्स बताए हैं कि ग्राफ कौन सा चूज करना है, कैसे ड्रॉ करना है, सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे सो यू मे बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ और या आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। सो watch that video first. Let's start this question. So in this question you need to draw graph for different functions. Let's read the statement. On a sheet of graph paper, you need graph paper for this question, using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis. Like for 1 centimeter you will be writing 1 unit and 1 centimeter to represent 2 unit on y-axis. What you need to do, you need to draw the graph. You need to draw the graph for the following functions, and you need to take the values of x from -4 to 4. You need to take the values of x from -4 to 4. So these are 4 functions, and you are supposed to draw the graph of these functions. And you need to take the values of x from -4 to 4. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So these are the values you are supposed to take. तो हम सारी values नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक सबसे स्मॉलर वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर जो कि -4 है, और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, और एक इसके मिडल वैल्यू जो कि 0 आ रही होगी, वो वैल्यू सपोज करनी है. लेट्स सॉल्व फॉर फंक्शन, लेट्स सॉल्व फॉर ए पार्ट जिसमें हमारे पास फंक्शन है y इक्वल 3x प्लस 7. सो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है y इक्वल 3x प्लस 7. ऑल राइट. सो अब यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल 3x प्लस 7, उसमें हमने x की वैल्यूज लेनी थी -4 to 4. हमने ये 3 वैल्यूज जो है वो कंसिडर कर ली, हमें सारी वैल्यूज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर व्हेन x इज इक्वल्स टू -4. जब x -4 होगा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y. सो हम लिखेंगे y इक्वल 3 ब्रैकेट -4 प्लस 7. मतलब जो गिवन फंक्शन है उसमें जस्ट आपने x की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है. सो 3 टाइम -4 विल बी -12. सो -12 प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू -5. ऑल राइट. अब इसी तरह से हम जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू निकालेंगे. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो तब आपके पास y की वैल्यू क्या होगी. So y will be equals to 3 into 0 plus 7. So that will produce 0 plus 7 equals 7. Now when x is equals to 4, तब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. When x is equals to 4, what will be the value of y? So we'll write y equal 3 times 4 plus 7. So 3 times 4 is 12. So 12 plus 7 will be 19. Now we will plug in these values in the table. Now we will write these values, not plug in. Now we will write these values in table. So when x is -4, y is -5. So let's write y -5 over here. When x is 0, y is 7. Let's write this value over here. When x is 4, y is 19. Let's write this value in the table. Now in question number 1, I told you, like when you got the values of x and y, write the coordinates. This will help you to draw the graph. So हमारे पास जो first coordinate आएगा वो होगा -4 -5, दूसरा coordinate है 0 7, और तीसरा coordinate है हमारे पास 4 and 19. ठीक है बेटा. चले अब हम दूसरा जो b पार्ट है वो उसमें फंक्शन है y इक्वल 3x प्लस 5. हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, y इक्वल 3x प्लस 5. सो जब हमारे पास x इज इक्वल्स टू, when x is equals to -4, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी वो हम निकाल लेते हैं. सो y will be equals to 3 into -4 plus 5. So 3 into -4 आ जाएगा -12, and -12 plus 5 will be equals to -7. All right, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी -7. Similarly, when x is equals to 0, when x is 0, तब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी.
y will be equals to 3 into 0 plus 5. So that will produce 0 plus 5. Sorry. So 0 plus 5 will be equals to 5. All right. So now when x is equals to 4, तो तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी y will be equals to 3 into 4 plus 5 so that will produce 12 plus 5 and this will be equals to 17. तो now put these values in table. So जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की वैल्यू will be equals to -7 एंड जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी एंड जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी 17. लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे. पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4 -7 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 5 एंड तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 17. So these are the coordinates for function for the function given in part B. Now let's do for C part. So in C part we have given function y equals 3x minus 3. Let's verify this from the book. Y is equals to 3x minus 3. Now when x is equals to -4 तो तब y की वैल्यू क्या आएगी वो हम निकाल लेते हैं. So y will be equals to 3 into -4 -3. So that will produce -12 -3 and this will be equals to -15. ठीक है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्लस माइनस के, तो इसलिए मैं इन पे डिटेल ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं क्विकली बता रहा हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टास्क यहाँ पर ये है कि हमने फंक्शंस का जो है वो ग्राफ बनाना. ये बेसिक जो कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी जो है वो पता होंगी. सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी. सो y विल बी इक्वल्स टू 3 into 0 -3. So this will produce -3. All right. सो 3 इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व. लेट्स मूव दिस. गिव मी 1 सेकंड. सो ये आ जाएगा 0 -3 इज इक्वल्स टू -3. ठीक है. जब x की वैल्यू 4 होएगी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 तब y की वैल्यू क्या होगी. सो y विल बी इक्वल्स टू 3 into 4 -3. सो ये आ जाएगा 12 -3 और 12 -3 बेटा आपके पास बन जाएगा 9. सो ये हमारे पास आ जाएंगे वैल्यूज. तो जब x -4 था तो y की वैल्यू आ जाएगी -15 और जब x 0 था तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 और जब x 4 था तो y की वैल्यू आ जाएगी 9. लेट्स राइट द कोऑर्डिनेट. तो ये आ जाएगा -4 -15 0 -3 and 4 9. So these are the coordinates. All right, for the function given in part C. Now last function is y equals 3x minus 6. Let me verify from the book. Is it correct? Yes, it's correct. So now we need to find the coordinates for function this function. So when x is equals to 0, when x is equals to -4, so y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी वो निकाल लेते हैं. So y will be equals to 3 into -4 -6. So 3 into -4 करेंगे तो -12 आ जाएगा, -6 करेंगे तो ये -18 आ जाएगा. जब x की वैल्यू 0 होगी, when x is equals to 0, so y will be equals to 3 into 0 -6. So that will be 0 -6 और ये हमारे पास आ जाएगा -6. All right. Now when x is equals to 4, when x is equals to 4 तो y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी. y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y will be equals to 3 into 4 -6. So that will be 12 -6 और 12 -6 करेंगे so this will produce 6. Let's put these values in table.
जब x -4 होगा तो y will be equals to -18, जब x 0 होगा तो y will be equals to -6, and जब x 4 होगा so y will be equals to 6. So these are the values of uh, for the function given in part D. All right. So now write the coordinate for this function as well. So it will be -4 comma -18, 0 comma -6, and 4 comma 6. So these are the coordinates. All right. Now the main part of this question is you should know how to draw the graph. आपको ग्राफ बनाना है, जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन के लिए. अब मुझे बताएं कि ये आपके पास ग्राफ है. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, दिस इज इजियर कि आप इस पे दिस विल बी इजियर फॉर यू टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ पेपर. एक आपके पास रेड वाला भी आता है, सो इट्स बेटर टू यूज दिस ग्राफ पेपर. उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस लगे होते हैं और क्वेश्चन में आपको यही कहता है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट है, तो आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना काफी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. ऑल राइट. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये डिसाइड करना होता है कि एक्स एक्सिस पे वैल्यूज कितनी ड्रॉ करनी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यूज ड्रॉ करनी जब भी आपने कभी ग्राफ बनाना. ठीक है. अब मुझे बताएं कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है. एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ सब में 4 है, 4 4 4. एंड एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -4 -4 -4. इसका मतलब ये है कि हमें ओरिजिन से इस तरफ कितने बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5. हम एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर ले. इसी तरह इधर भी आपको -5 तक वैल्यूज चाहिए, आपको -5 तक बॉक्सेस चाहिए. अब y की मैक्सिमम वैल्यू देखें कितनी है. ये सारी y की वैल्यूज है सारे फंक्शंस के लिए, क्योंकि हमने इनका इकट्ठा ग्राफ बनाना तो हम सबको जो है वो देखेंगे. y की मैक्सिमम वैल्यू क्या, सबसे बड़ी वैल्यू वो है 19. इसका मतलब हमें 20 तक ड्रॉ करना होगा. ऑल राइट. इसी तरह जब आप y की मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू y की आ जाएगी -18. इसका मतलब भी हम एक वैल्यू एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे तो -20 तक जो है वो करेंगे. अब एक वैल्यू एक्स्ट्रा ड्रॉ करने का मतलब आप एक जो है यूनिट और लिखेंगे, और क्योंकि y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल है, तो अगर एक यूनिट और लिखेंगे तो आपके पास 1 सेंटीमीटर और लेके जाएंगे तो हमारे पास -20 है. देखो जब ग्राफ करेंगे तो आपको समझ लेंगे. मेरा बेसिकली यहाँ पर आपको मकसद ये है बताने का कि आपके पास जो y की मैक्सिमम वैल्यू आपने जानी है वो 20 तक, और जो y के मिनिमम वैल्यू -18 या -20 तक जाना है. अब 20 वैल्यू है तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर 2 बॉक्स का, तो हमें ऊपर की तरफ एटलीस्ट 10 बॉक्सेस चाहिए. तो आपने ये मार्जिन रखना है, ऊपर की तरफ भी 10 बॉक्सेस चाहिए, नीचे की तरफ भी 10 बॉक्सेस चाहिए. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. और यहाँ थोड़ा सा मार्जिन रखे हुए ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, दैट्स बेटर. आप जिस तरह से मर्जी कर ले. तो हम ये करते हैं, हम सेंटर से ड्रॉ स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं सेंटर से. ठीक है, इस ग्राफ के कहीं सेंटर से हम ड्रॉ कर लेते हैं और ऊपर की तरफ हमें 10 बॉक्सेस चाहिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. यहां पर इस तरफ हमारे पास होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. और यहां पर हमारे पास होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस. बेटे लाइन आप देख लें, अगर मैं स्क्रीन पे एक्यूरेटली लगा रहा हूं तो आपने भी एक्यूरेटली इस तरह से लाइन लगानी है. लेट्स mark these values 1 2 3 4 and 5. यहाँ पर भी मार्क कर ले -1 -2 -3 -4 एंड -5. ठीक है, हमें यहाँ तक चाहिए, हम एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं लिखेंगे. यहाँ पर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है और उसने क्वेश्चन में कहा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. आपने 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट का होगा एक्स एक्सिस. ऑल राइट. तो हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट कर दिया. ठीक है. अब y एक्सिस पे उन्होंने कहा था 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑन y एक्सिस. मतलब हम एक बॉक्स के बाद 2 वैल्यूज लिखेंगे, मतलब लाइक 2 लिखेंगे. 2 वैल्यूज मतलब यानी कि हम
हर यूनिट के बाद दो दो का गैप लिखेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वाई एक्सिस. चलिए, अब हम ऊपर की तरफ हमें एटलीस्ट 10 बॉक्सेस चाहिए बिकॉज हमने 20 तक वैल्यूज लिखनी है. लेट्स ड्रॉ द लाइन हियर एज वेल. इसको एक्यूरेटली जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए अब इसको लेबल कर लेते हैं. जहां तक होगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन हम रेज कर देंगे. ठीक है, हमें एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए. सो आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10. अब ऊपर की तरफ हम लिख लेंगे फिर 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, 20 तक चाहिए थे हमें. हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपके पास 19. तो आप यहाँ पर इसको अगर आप लेड पेंसिल से करें तो आप इजीली इरेज कर सकते हैं. अगर लाइन ऊपर लगी भी रहे तो उसको लेबल ना करें आप तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है. सो दिस इज वाई एक्सिस. इसको भी लेबल कर लेते हैं. एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरफ जो है ये वाला. एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब नीचे की तरफ भी हमें ऑलमोस्ट 10 बॉक्सेस चाहिए. ठीक है, let's let's label these x as well. So this is -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18 and then -20. एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. सो अब हमने सारा जो ग्राफ है वो लेबल कर लिया. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको. हमने सारा ग्राफ जो है वो लेबल कर लिया. अब हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे वन बाय वन. अब हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है वो है -4, -5, 0, 7. इन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. ठीक है, तो हमें बार बार क्योंकि ऊपर से फिर देखना पड़ेगा तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन इनको हम पेस्ट कर लेंगे. अब हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो ड्रॉ करने. लेट्स पेस्ट दीज कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए -4, पहला पॉइंट है हमारे पास -4, अब मेरा बेटा मुझे बताएं कि -4, का मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे -4 यूनिट मूव करना है एंड वाई एक्सिस पे -5 यूनिट मूव करना है. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. अब यहां से देखिए -1, -2, -3, -4, -2, -4 और ये -5 इसके सेंटर में आएगा. -4 और -6 के बिल्कुल सेंटर में. इसको जूम करके आपको बता रहा हूँ. -4 और -6 के बिल्कुल सेंटर में आएगा. देखिए यहाँ पर देखिए मेरा बेटा, ये -4 है, ये -6 है. एक बॉक्स ऊपर से छोड़े, एक नीचे से, एक बॉक्स ऊपर से, एक नीचे से. तो ये वाली यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो है वो आपका पॉइंट आएगा -4, -5. ठीक है, ऑल राइट. सो यहां पर मैं अब पॉइंट लगा रहा हूं -4, -5. सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, -5. ये इधर से -4 के सामने है और इधर से -5 के सामने है. ठीक है, तो आपने एक्यूरेटली इसको प्लेस करना है, इसलिए जूम करके आपको दिखा रही है. अब दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा हमारे पास है 0, 7. अब 0, 7 जो है उसका मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस पे कोई यूनिट मूव नहीं करना, वाई एक्सिस पे 7 यूनिट मूव करने. सो वाई एक्सिस पे अगर हम 7 यूनिट मूव करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आता है 0, 7. ठीक है बेटा. उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है 4, 19. 4, 19 का मतलब ये है एक्स एक्सिस पे आपने 4 यूनिट्स मूव करनी है, 1, 2, 3, 4, और वाई एक्सिस पे आपने 19 यूनिट मूव करनी, जो कि यहाँ पे सेंटर में आ रहा होगा. तो अब आप नीचे से ये नोट कर लेंगे 4 की लाइन आ रही है. तो जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे स्केल रख लेंगे. मैं बच्चों को कहता हूँ बड़ा स्केल यहाँ पे रख लें इस तरह से. आपको फिर वो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि 4 वाली लाइन कहाँ से आ रही है. ये 4 है, ये 4 वाली लाइन आ रही नीचे से, और ये यहाँ पर आपको 90, ये 1, 2, 3, ये 4 वाली लाइन है और ऊपर आपको जाना 90. तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आएगा. ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 4, 19 विल बी दिस पॉइंट. ठीक है बेटा, ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, ये हमने 3 पॉइंट्स जो है वो ड्रॉ कर लिए. अब हम क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे.
ये आपने मेक श्योर करना कि आपकी लाइन जो है ये बिल्कुल सेंटर से पास हो। जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि इन सेंटर से, मैं प्रॉपर जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ये इन पॉइंट से जो है वो पास करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन जो है वो फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने ड्रॉ कर ली है। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन बेटा हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -7, 0, 5, 4, 17। इनको भी हम कॉपी करके उधर ले आते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर से ये देखना ना पड़े। -4, जी ये हमने इनको कॉपी कर लिया यहाँ से। एंड लेट्स पेस्ट दीज कोऑर्डिनेट ओवर हियर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये वाले जो कोऑर्डिनेट है -4, -7। अब -4, -7 का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे -4 यूनिट मूव करने और वाई एक्सिस पे -7 यूनिट। तो -4, -7 बेटा आपके पास आएगा यहाँ पर। -4, -7 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके पास 0, 5। यहाँ से आप देख सकते हैं 0, 5। सो 0, 5 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ये 0, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है 4, 17। तो 4, 17 बेटा आपके पास होगा 4 की लाइन ये है, और ये 17 आपके पास यहाँ पर होगा 16 और 18 के बीच में। 16 और 18 के बीच में 17 है, तो 4, 17 विल बी ओवर हियर। नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, तो नाउ इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द लाइन फॉर फंक्शन 3। उसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -15, 0, -3 एंड 4, 9। -4, -15, 0, -3। अब -4, -15 आपके पास कहीं यहाँ पर आएगा। एक्स एक्सिस पे -4 यूनिट मूव करने और वाई एक्सिस पे -15। तो -4, -15 बेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये -4 की लाइन आ रही है और ये यहाँ पर -15 होगा। -4, -15। ठीक है, मैं इनको जरा दोबारा एक्यूरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये आ जाएगा -4, -15। ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास जो है अगला पॉइंट है 0, -3, 4, 9। 0, -3 आपका वाई एक्सिस पे आ रहा होगा। 0, -3, सो ये आ जाएगा बेटा 0, -3। एंड उसके बाद आपके पास आ जाता है 4, 9। सो 4, 9 आपके पास ये वाला पॉइंट होगा। 4, 9 विल बी दिस पॉइंट। ये 4 वाली लाइन है और ये 4, 9 विल बी दिस पॉइंट। ठीक है बेटा, नाउ वी विल जॉइन दीज पॉइंट्स विद स्ट्रेट लाइन। सो ठीक है बेटा, ये मैंने स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दिया। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, आपके पॉइंट्स इधर उधर जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो डेट मीन आपके ने कहीं पॉइंट्स की जो वैल्यूज फंक्शंस की निकाली वो गलत है। अब अगले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हमें फिर से बार बार देखना पड़ेगा। सो अगले जो फंक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -4, -18 और 0, -6। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये पॉइंट जो है ये ड्रॉ करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा। उसकी रीजन ये है कि इस पॉइंट में जो हमारे पास फंक्शन है वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो इवन है, वो एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, बीच में हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब -4, -18 जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा।
-4 -0 -6 बेटा हमारे पास ये आ जाएगा 0 - 6। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है 4 6। और बेटा 4 6 जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। दिस विल बी द पॉइंट 4 6। ठीक है, लेट्स ज्वाइन दीज पॉइंट्स एज वेल। ठीक है बेटा, तो अब आप इन लाइंस को जरा एक्यूरेटली देख सकते हैं कि ये सारी लाइंस जो है एग्जैक्टली जो है वो सारे पॉइंट से एक लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन आपका बन रहा है। तो आपके पास जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है, लीनियर फंक्शन मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ का मतलब आपके पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, अक्सर बच्चों की जब फर्स्ट टाइम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स की गलतियां होती हैं या कुछ और मिस्टेक्स होते हैं, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। अब बी पार्ट में उन्होंने पूछा, सेकेंड पार्ट में, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस ड्रॉन इन पार्ट 1। तो आपके जो लाइन पार्ट 1 में ड्रॉ किए इनके बारे में आप क्या नोटिस कर रहे हैं? तो बेटा ये लाइंस पैरेलल है, ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो दीज लाइंस आर पैरेलल। सो इन लाइंस के बारे में सेकेंड पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं? दीज लाइंस आर पैरेलल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इशू है इसमें, सो यू कैन आस्क। ऑल राइट, सो स्टिल अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। सो आपके पास जो है मेरे चैनल पे चैप्टर 1 का पूरा जो है वो कोर्स मिल जाएगा, तो आप इन वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। Okay, student, take care and Allah Hafiz.